Hello, home buyers of Gurgaon and nearby areas. Today we will discuss the FAQs for the people who are looking to invest in Sohna Road and Sector 95 Gurgaon in this area. Today we have with us Mr. Vaibhav Sahu, who heads the Grok team in Gurgaon and has been helping home buyers, lot of home buyers I would say, in last few years to get their dream home in their budget. He knows the affordability, he knows the sentiments out there. So Mr. Vaibhav, to start with, let's start discussing the geographical position of Sector 95 and Sohna Road, Gurgaon. Sure, Ashish. Thank you for inviting me, and hello, viewers. The reason why we are discussing about Sohna Road and Sector 95 in Gurgaon is quite obvious because, if you talk about the dynamics of the market right now, everybody's, saying everybody has a feeling that Gurgaon is becoming very unaffordable now. Okay, so these are the two regions where the prices are still still affordable, I would say, right? So that's the most reason why we are discussing about these two regions. Now, if we talk about the geographical location, Sector 95 and Sohna, they are both in different directions, right? If we talk about Sohna first, see, Sohna is in south of Gurgaon, right? And if you talk about any tier 1 city, they are the south of any city. It is that has progressed more. If we talk about South Delhi, if we talk about South Mumbai, right? So south of all the metropolitan cities, they are I don't know what relation it has, but south of every city is has been seen to progress more. Okay, and Sohna being a part of Gurgaon district, Sohna has in near future, in near past, sorry, Sohna has progressed a lot because of the development of the Delhi-Mumbai corridor. So that is the biggest development that has happened with Sohna, and that has brought Sohna very near to Gurgaon. Right now, anybody working in Gurgaon, there are two epicenters where the Fortune 500 companies they eye in Gurgaon. Right, the first one is the Cyber City, right? That is the current epicenter of all the Fortune 500 companies. Apart from that, the Cyber City 2, which is which is being planned somewhere near Sector 74, 75. Right now, these two locations, if we if we talk about the connectivity from Sohna, so both these locations are in they are very approachable because of the connectivity, right? And you can reach both the destinations from Sohna within 30 minutes, right? So if anybody would prefer to buy a property very near to their workplace, right? Now Gurgaon becoming very unaffordable for many corporates, right? Because we can't count many properties in Gurgaon coming in budget less than 2.53 CR, right? But that's a very decent budget, and for any corporate
whose salary is around 3.5, right? It becomes very unaffordable for that high salary range also, right? So Sohna, Sector 95, New Gurgaon, these are few these locations have few options which can cater to their needs, right? So I believe considering Sohna as a as a place of residence, well, that becomes a very decent option, I would say, right? And then secondly, if I talk about Sector 95, Sector 95 is the the most isolated sector in New Gurgaon. Right. Sector 95 also has few options, few projects coming up, few plotting developments coming up, right, which are in affordable range, right? So that's why we have decided to talk about these two locations. So the prime reason is the pricing. Well, and one more not to miss out, if we are not compromising, if we are getting an edge on pricing, we are not compromising on amenities offered in those locations, right? Both the locations have good hospitals, good colleges, good schools. So whatever anything which we need for our daily life, that is available in those two locations. And again, Sector 95 being near to IMT Manesar. IMT Manesar also is also developing as a very industrial and commercially developed, and so that's why both the locations, they are strategically placed, and I believe that can be a very decent option for our home buyers. तो वैभव, आपने जैसा बताया बड़ा एक्साइटिंग लगा मुझे कि जो लोग गुड़गांव में घर थोड़ा सा अनअफोर्डेबल हो गया, आपने बहुत ठीक बात करी। पिछले कुछ समय में इतना अनअफोर्डेबल हो गया है कि एक 2 BHK तो 1.52 से तो कम कुछ भी नहीं है, और 3 BHK 2.5 से कम कुछ नहीं है। तो बहुत लॉजिकल बनता है कि जो लोग अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं गुड़गांव के अंदर, वो नए एरियाज़ में मूव कर जाएँ। नए एरियाज़ थोड़े से बेटर डेवलप्ड भी होते हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। आपने बताया सिर्फ 30 मिनट में साइबर सिटी से सोना पहुंचा जा सकता है, और वो शायद इम्प्रूव भी हो रही है, और साइबर सिटी 2 भी आपने बताया। तो किस टाइप की कनेक्टिविटी अभी है और किस टाइप की कनेक्टिविटी प्रपोज्ड है, किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब इसे 30 मिनट को, और क्या क्या तरीके हैं साइबर सिटी या गुड़गांव के मेन लैंड से नोएडा या ये सोना पहुंचने के? ओके, जी हाँ आशीष, देखिए अभी की जो कनेक्टिविटी है, अगर मैं साइबर सिटी से बात करूँ तो साइबर सिटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी NH8 की है, जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, और दिल्ली जयपुर हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की है। तो साइबर सिटी से आप मतलब NH8 के बाद फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है, और आप सोना पहुंच जाते हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल डेवलप्ड कनेक्टिविटी है, राइट। हाँ, अभी जो दिल्ली जयपुर हाईवे है उस पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, राइट, और वो ट्रैफिक थोड़ा सा आई बिलीव कम हो सकता है जब आपका द्वारका एक्सप्रेसवे फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवर लीफ, दैट इज़ मतलब न्यू गुड़गांव, या मैं कहूँ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से द्वारका तक की कनेक्टिविटी अभी है, बट उससे आगे की कनेक्टिविटी जो एक सेमी सर्कल फॉर्म होता है, जो शिव मूर्ति से NH8 के शिव मूर्ति से द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर किसी को मतलब गुड़गांव अगर बाईपास करना है, राइट, तो और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से अपने आप को बाईपास कर लेते हैं तो फिर NH8 की जो कनेक्टिविटी है, NH8 की जो ट्रैफिक है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी,
और जो कि जिसका कि बेनिफिट आने वाले समय में अगर आप साइबर सिटी 1 से सोना की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आपको बेटर होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ है जो साइबर सिटी 2 की मैंने बात करी, जो कि सेक्टर 74-75 के अराउंड प्लान्ड है, जहाँ पे DLF बहुत एग्रेसिवली डेवलपमेंट कर रहा है। और भी SPR की जो डेवलपमेंट अभी आप हर कोई सुन रहा है कि SPR अभी मतलब सबसे अगर हॉट स्पॉट अगर गुड़गांव में कुछ है तो वो है आपका SPR पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। SPR अभी जो कनेक्टिविटी है वो मतलब SPR टू सोना रोड में बात करूँ तो कनेक्टिविटी तो है, बट अभी वो वहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट पास हुआ है गवर्नमेंट का, काम भी शुरू होने वाला है। और क्लोवर लीफ से यानी NH8 से एलिवेटेड रोड होगा जो कि डायरेक्टली आपको सोना रोड या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब जब वो एलिवेटेड रोड आई बिलीव कम से कम 3 से 4 साल तो होराइजन हमें लेकर के चलना होगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल जो मूवमेंट हरियाणा में या गुड़गांव में देखा गया है तो मतलब उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा गुड़गांव को मिलने वाला है, राइट। तो मतलब बहुत एग्रेसिवली काम होने वाला है एंड आई बिलीव हम लोग होपफुल हैं कि ये जो एलिवेटेड रोड है ये 3 से 4 साल में फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। और जब ये एलिवेटेड रोड फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा तो आपका जो कनेक्टिविटी है सोहना से साइबर सिटी 2 की कनेक्टिविटी भी डायरेक्ट एलिवेटेड रोड के थ्रू ही हो जाएगी। ओके, और मतलब ये बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, आपका जो मतलब जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर का नॉर्मल मतलब जो प्लान है गवर्नमेंट के हिसाब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू, राइट। तो सीमलेस कनेक्टिविटी मिलने वाली, तो कनेक्टिविटी वाइज तो कभी कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। और गुड़गांव बीइंग अ मिलेनियम सिटी, गुड़गांव में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, एरिया बहुत कम है, बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने मिला है। आप मतलब गुड़गांव हैज़ बिकम द मोस्ट expensive real estate deal, residential real estate deal has been seen in Gurgaon. आपका जो DLF Camellias है 190 CR का जो डील था, जो कि 1.8 lakhs पर स्क्वायर फीट का रेट अभी गुड़गांव में हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। तो दैट हैज़ सरपास्ड मुंबई, विच वाज जो मुंबई का मुझे याद आ रहा है जो हाईएस्ट रियल एस्टेट डील था वो 1.62 lakhs पर स्क्वायर फीट का जो आपका शायद बैंड्रा कोल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, राइट। तो उसको सरपास करके गुड़गांव अभी नंबर 1 पे पहुंच गया है, राइट। तो और गुड़गांव में मतलब एक छोटे से एरिया में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गया है कि गुड़गांव मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरली रिच हो चुका है और चीज़ें रुकने की नाम नहीं ले रही। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे अभी आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है वो भी मतलब गोल्फ कोर्स रोड की तरह ही नो रेड लाइट जोन होने वाला है, राइट। तो कनेक्टिविटी वाइज तो गुड़गांव को मतलब आने वाले समय में कोई बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, आप हर जो मतलब जो क्या कहते हैं मेन रोड्स हैं वहाँ पे आपको सीमलेस कनेक्टिविटी, नो रेड लाइट कनेक्टिविटी आपको दिखने वाली है, राइट। और we out of 500 Fortune 500 companies, more than 250 Fortune 500 companies, they already have their offices in Gurgaon. Most of them have their headquarters. और मतलब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि अमेरिकन एक्सप्रेस, BMW, आपका एयर इंडिया,
ये लोग तो SPR में लैंड लेकर के अपना अपना हेडक्वार्टर्स उन्होंने बिल्ड कर दिया है। और बहुत से मतलब लैंड एग्रीगेटर्स जिनसे हमारी कभी मुलाकात होती है तो वो लोग बताते हैं कि हर कंपनी का एक जो मतलब एस्पिरेशन है कि हर कोई वहाँ पे लैंड ढूंढ रहा है, राइट। और DLF के पास बहुत सारा लैंड पार्सल है। DLF अभी मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट कर रहा है। वो पूरा DLF का आप जानते हो कि वो पहले इन्वायरमेंट को, वहाँ की जो विसिनिटी है, वहाँ की लोकेलिटी, उसको डेवलप करता है, उसके बाद फिर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के आता है। तो मतलब सब कुछ जो अच्छा होना चाहिए एक रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से, वो हर कुछ सब कुछ गुड़गांव में हो रहा है। एंड कोई भी अब गुड़गांव में जो प्रॉब्लम्स थे वो थी एक आपके क्या कहते हैं कनेक्टिविटी की, वहाँ पे जो ट्रैफिक जैम्स होते थे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। उस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है, राइट। म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पहले गुड़गांव में कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं था। म्यूनसिपैलिटी हाँ बहुत टाइम से फंक्शनल है, बट वो लोग और ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं। अब गुड़गांव में जो स्वच्छता है वो भी बहुत अच्छा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एजुकेट हो रहे हैं, राइट। तो जो जेंट्री आ रही है यहाँ पे वो बहुत क्लीन जेंट्री आ रही है। तो हर सब कुछ गुड़गांव के लिए अच्छा हो रहा है। एंड जो पहले हमें प्रोजेक्ट्स मतलब बिल्डर्स जो फंसते हुए दिख रहे थे, जिनकी प्रोजेक्ट्स अटक जा रहे थे और रियल एस्टेट से बिटर एक्सपीरियंसेस लोगों को हुआ था, उन चीज़ों को भी गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। SBI की जो स्वामी सब्सिडियरी है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, राइट। एंड आई बिलीव अब गुड़गांव में बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स रह गए हैं जिनकी मतलब जो कि फंसे हुए हैं, ठीक है। अभी भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, बट उनको भी रिवाइव किया जा रहा है, राइट। तो सब कुछ मतलब जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वो सब कुछ हो रहा है गुड़गांव में, राइट। और आने वाले समय में अभी रेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, यहाँ पे अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो हर कुछ अच्छा हो रहा है रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से। तो मतलब होम बायर्स जो कि अपने एंड यूज़ के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए गुड़गांव को कंसीडर करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल करें, क्योंकि आने वाले समय में गुड़गांव में रियल एस्टेट ओन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। वैसे अभी बहुत लोग बात करते हैं कि जिस तरह से मुंबई था एक समय में, मुंबई में आप रियल एस्टेट आप मिलना बहुत मुश्किल था। हाँ, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आप ले सकते थे, उसी तरह से गुड़गांव होता जा रहा है, राइट। तो अभी मेरी जो सजेशन कह लो, एडवाइस कह लो, अगर आप सोच रहे हो रियल एस्टेट ओन करने का गुड़गांव में, तो अभी आपको मतलब आप जितना जल्दी डिसीजन ले सकते हो आप ले लो, राइट। आप वेट मत करो, क्योंकि वेट करने में फिर बहुत ज़्यादा। और अभी आज मेरी एक अपने क्लाइंट से बात हो रही थी, वो पिछले 1 साल से मतलब होम सर्च कर रहे हैं, 1 साल से टच में हमारे, राइट। और मतलब उनका जो रिग्रेट था वो यही था कि उन्होंने डिसीजन 1 साल पहले क्यों नहीं ले लिया। अब है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि जिनके तरफ वो देख भी नहीं रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स रिवाइव हुए और वो उनके सामने बिक गए, राइट। प्राइजेस जो कि होम बायर सोच रहे थे कि अभी एक क्या कहते हैं एग्जैजरेटेड ये इन्फ्लेटेड मार्केट है, राइट। तो ये थोड़ा बहुत जो है लेवल पे आएगा। हाँ, थोड़ा सा एक करेक्शन आप कह सकते हैं, जो कि हायर टिकट साइज में जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट मोर देन 3.5 CR की जो सेगमेंट है उसमें एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था, राइट। बट जो लोअर टिकट साइज है उसमें कोई स्लो डाउन नहीं आया, वो मतलब आ रहे हैं और बिक रहे हैं। इवन सिग्नेचर ग्लोबल ने अभी जो कि कोई सेक्टर भी नहीं है, अपने सोना और गुड़गांव के बॉर्डर में नियर द सोना टोल उनका 150 एकड़ का एक टाउनशिप आया है, राइट। उसमें 50 एकर्स में वो अपना रेजिडेंशियल डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं टैक्स इन्वेस्टर्स के नाम से। वो मतलब ऑलमोस्ट आई बिलीव 70-75% प्रोजेक्ट वो सोल्ड आउट है। अभी 4th फ्लोर पे क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने 4th फ्लोर लॉन्च करा नहीं था।
अब फोर्थ फ्लोर पे क्लैरिटी है, अभी उन्होंने फोर्थ फ्लोर के लिए EOIs लिए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिला है, राइट। हर हर किसी, जब वो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तो हर कोई कह रहा था कि यार 2 CR फॉर दैट लोकेशन इज़ टू मच, राइट। बट आप देखो वो बिक गया, राइट। तो जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप फोमो है, फोमो आप बहुत ज़्यादा तो 6 महीने साल भर के लिए फोमो में आप पब्लिक को रख सकते हो, ठीक है। बट अगर वो मतलब मोर देन 2 years कंटिन्यू हो रहा है, तब आप उसको फोमो नहीं कह सकते हो, ये क्रिएटेड फोमो नहीं है। हाँ, जरूर कुछ बढ़िया हो रहा है तभी प्राइजेस हैं, वो प्राइस हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तभी चीज़ें बिक रही हैं। अभी आप मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो 2022 से जो एक बूम आया है मार्केट में, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, राइट। तो मतलब गुड 2.5 years तो बहुत आराम से मैं कहूँगा कि 2.5 years से तो बहुत मतलब प्राइजेस जो हैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़े हैं यहाँ पे, राइट। और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा ही, राइट। तो होम बायर्स के लिए मतलब मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं और अगर आप छोटे टिकट साइज में प्लान कर रहे हैं तो फिर आप वेट मत कीजिए। आप उस जो एक बूम है, जो बुल रन है, आप उस बुल रन में को एंजॉय कीजिए, ठीक है। आप बुल पे सवार होने की कोशिश कीजिए, राइट। चाहे आप क्या कहते हैं, एक बार के लिए वो प्रोजेक्ट आपके बजट में, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके बजट में आ रहा है बट आपको वो पसंद नहीं है किसी भी रीज़न से, लोकेशन हो या फिर उसका लेआउट हो या कुछ भी रीज़न, राइट। बट जो टाइम का जो आपका लॉस हो रहा है, वो उस टाइम के लॉस को आपको समझना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वो टाइम जो है आपके पैसे आपके पास हैं, राइट। बट अगर वो पैसे अगर इन्वेस्ट हो जाएंगे तो फिर वो टाइम का जो आपको प्रीमियम है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके हैं, आप वेट कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें मतलब जैसे अभी मैंने अपने क्लाइंट का एग्जांपल दिया, वो 1 साल पहले जो प्रोजेक्ट की जिन प्रोजेक्ट्स की तरफ देख भी नहीं रहे थे, अभी वो उन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करना चाहते हैं, बट वो प्राइस बहुत ज़्यादा उनको लगता है, राइट। तो ये चीज़ें जो है अब मतलब 2.5 साल से ऊपर हो गया इस चीज़ को देखते हुए, राइट। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये मतलब क्या कहते हैं मतलब इन्फ्लेटेड मार्केट है या फिर इन्वेस्टर्स ने इस मार्केट को हाईजैक कर रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट में डिमांड है, लोगों को घर चाहिए, लोग घर खरीद रहे हैं, बिल्डर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को ऑन ग्राउंड काम होता हुआ दिख रहा है, राइट। इस वजह से जो है प्राइसेस जो हैं वो मतलब क्या कहते हैं, सब एक्सेप्टेबल प्राइसेस लोगों ने एक्सेप्ट करा है, ठीक है। तो हम उसको मतलब आई एम नोबडी टू जज दैट, बट हाँ, मार्केट सिनेरियो ये है, लोगों ने एक्सेप्ट करा है, तो हमें भी मतलब क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक क्या कहते हैं मतलब लेसन लेना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मैम जी। और आपने बहुत सी बताया कि देखिए, जब भी रेजिडेंशियल अपने लिए घर लेना चाहता है आदमी को, तो वेट नहीं करना चाहिए। एवरी टाइम इज गुड टाइम टू बाय योर ओन होम। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि यू शुड नॉट वेट एंड बाय रियल एस्टेट, यू शुड बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। आपने बहुत अच्छे से बताया कि बुल रन पे भी सवार होना है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन वैभ जी, होम बायर्स का बहुत होता है कि जैसे वो सोना कंसीडर करें, तो सोना में आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट हब्स, ये वो कहाँ एक्सेस कर पाएंगे? और अभी क्या सिचुएशन और कैसा डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर इन सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का? तो देखिए, सोना की अगर मैं बात करूँ तो अभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ तो कोई मतलब इनफैक्ट जो GD गोविंद का स्कूल है, GD गोविंद का यूनिवर्सिटी है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, राइट। तो मतलब ये ऐसे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ से गुड़गांव के बच्चे वहाँ जा कर के उसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट। और अभी जो जिस तरह का डेवलपमेंट, क्योंकि आप सोना को गुड़गांव से अलग मत देखिए, क्योंकि
मतलब सोना और गुड़गांव, गुड़गांव का राजीव चौक और सोना मतलब 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है, राइट। और जितने भी शॉपिंग जैसे आर्या मॉल है सोना रोड पे, राइट, दैट इज़ वेरी अप्रोचेबल फ्रॉम सोना, राइट। और जैसे मैंने अभी बात करा है सिग्नेचर ग्लोबल 150 एकड़ का जो डेवलपमेंट है उनका, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, वहाँ पे वो मॉल लेकर के आ रहे हैं, वहाँ पे वो हाई स्ट्रीट लेकर के आ रहे हैं, सॉरी, जो कि किसी यूरोपियन मार्केट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा। जो साइबर हब का जिस तरह का एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो साइबर हब के जैसा कुछ बनाएंगे, राइट, बट एक अलग एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे होगा। सिग्नेचर मतलब उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अभी 150 एकड़ के टाउनशिप में सिर्फ 50 एकड़ का उनका रेसिडेंशियल डेवलपमेंट है, 100 एकड़ का कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं, कमर्शियल एंड आपका जो ITES SEZ इसका डेवलपमेंट वहाँ पे मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम पे मतलब बहुत सी कंपनीज, बहुत से मे बी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से भी कुछ कंपनीज जो है आपको वहाँ पे देखने को बहुत आराम से मिलेगी, राइट। तो और उसके अलावा और भी डेवलपमेंट है, और भी जितने भी बिल्डर्स जो कि अपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हर कोई अपने रेसिडेंशियल के साथ कमर्शियल एक लेकर के आता है, राइट। बट वो तो है, चलो ठीक है, आपके डेली नीड्स को कैटर करेगा। बट अगर मैं मतलब बड़े पैमाने पे मैं अगर बात करूँ, राइट, तो मतलब सोना और गुड़गांव मतलब दे आर नॉट वेरी फार अपार्ट, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कोई लैंडमार्क शॉपिंग डेस्टिनेशन चाहिए तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, गुड़गांव आप आ सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। और अगर आपको डेली जो नीड्स हैं आपके, वो तो आपको आपके मतलब सोसाइटी के अंदर ही मिलने वाले हैं, राइट। और अगर मैं इनफैक्ट गुड़गांव के सदर बाजार की भी बात करूँ, दैट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑर्थोडॉक्स मार्केट, राइट, ठीक है। वहाँ पे मतलब दैट इज़ चांदनी चौक ऑफ गुड़गांव, जो सदर बाजार है, राइट। तो उसकी भी कनेक्टिविटी सोना से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आप जो एलिवेटेड रोड लेते हो, ठीक है, और आप NH जो दिल्ली जयपुर हाईवे के नीचे से अंडरपास से आप सीधे जा करके सदर बाजार में आप निकलते हो, राइट। तो सोना को कनेक्टिविटी बहुत अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। और मतलब सोना में भी मतलब अभी प्राइसेस कम हैं, ठीक है। और अभी मैं अभी सिल्वर ग्रेड का द मीडिया प्रोजेक्ट है जो कि अटक गया था, एंड अभी उनको भी स्वामी का फंड मिला और उसने अपने आप को रिवाइव करा है। उनका एक इवेंट था लास्ट मंथ, वहाँ पे मैं गया था, एंड राइट नाउ जो प्राइसिंग उनका 11,200 का है, दे हैव अ टारगेट ऑफ 15,000 फॉर जनवरी 2026, ठीक है। और वो दैट इज़ वेरी अचीवेबल, क्योंकि जो भी रेट वो लेकर के आ रहे हैं उनका वो बिक रहा है, राइट। तो सोना भी आने वाले टाइम में मतलब क्या कहते हैं, गुड़गांव हो जाएगा, इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक। बट हाँ, आपको गुड़गांव और सोना में फिर आपको मतलब आप ये नहीं मतलब सोना गुड़गांव का पार्ट ही आपको देखने को उस तरह से मिलेगा। ये जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट ड्राइव किया है कि सिर्फ नाम अलग है, वरना गुड़गांव और सोना ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट परमेबल बाउंड्री है। 15 मिनट में अगर आप गुड़गांव से सोना पहुंच सकते हैं तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। और जैसा आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस की, वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लैंड वहाँ अवेलेबल होगी, स्कूल्स के लिए, तो किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा वैभव जी ये और बताइए, गुड़गांव में जो जनता है वो बाहर से बहुत आई हुई है, यूपी से, बिहार से और अदर प्लेसेस से बहुत आकर के वहाँ पे लोग जॉब करते हैं। तो हाउ इज़ द लॉ एंड ऑर्डर इन दीज एरियाज जिन पे हमारा फोकस है आज की डेट में, सोना, क्योंकि लोग अपनी फैमिलीज के साथ मूव करें, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है? वैसे तो सुनने में तो ये आता है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके से सुनेंगे तो और थोड़ा इम्प्रूव एग्जैक्ट पता लगे। बिल्कुल आशीष जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है।
लॉ एंड ऑर्डर का। देखिए, अभी अराउंड 1.5 years बैक या 2 years बैक, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक इंसिडेंट हुआ था जो कि सोना से थोड़ा आगे जो मेवात वाला एरिया है, वहाँ पे थोड़े कुछ मतलब राइट्स वगैरह हुए थे, जिसकी वजह से गुड़गांव बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, राइट, क्योंकि गुड़गांव और सोना में बहुत हार्डली डिफरेंस है, राइट। तो उसके बाद से जो अथॉरिटीज़ ने बहुत से प्रिवेंटिव स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने लिए हैं। मतलब उनसे भी जो क्या कहते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्स्टेंटली टच में रहें, ठीक है। तो उनके तरफ से भी जो है ना, मतलब पहले जो वो ना एक रिएक्टिव मोड में काम करते थे, ठीक है। मतलब जो इंटरनली वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या उनका प्लान है, वो तो मतलब दैट कांट बी मेड पब्लिक, राइट। बट अगर मैं मतलब बोल्ड लाइन से बात करूं, तो वो रिएक्टिव मोड में होते थे पहले, राइट। अब वो प्रोएक्टिव मोड में रहते हैं, ओके। और अभी आप मतलब पहले था सर कि मतलब आफ्टर 8:30, ठीक है, सोना से अगर आप अगर सोना में हो, तो आपको गुड़गांव या फिर दिल्ली अगर आप आना चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट लगता था, राइट। बट जब से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिली है, राइट, तो आप सोना में अगर आप किसी भी काम से आप सोना आए हो, चाहे आप दिल्ली से ही क्यों ना आए हो, या नोएडा से ही क्यों ना आए हो, गाज़ियाबाद से ही क्यों ना आए हो, ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप जो है ना, मतलब एक अलग ही कहीं पे आप आ गए हो, आप मतलब कोई आइसोलेटेड जगह पे आए हो। आप मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सोना से विदिन 20-25 मिनट्स आप दिल्ली एंटर कर जा रहे हो, राइट। तो मतलब वो बहुत क्या कहते हैं, और रात के टाइम में, उस टाइम पे जब ट्रैफिक कम होती है, और एलिवेटेड रोड पे तो सर वैसे भी आप एक बार एलिवेटेड रोड पे चढ़ गए तो आपके पास सीमलेस कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो उस लिहाज से और सिक्योरिटी के लिहाज से सर सोना इज़ वेरी मतलब क्या कहते हैं, वेरी एंड यूज़र फ्रेंडली, आप इसको मान सकते हो, ठीक है। बहुत से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सी प्लॉटिंग आई है, DDJY की प्लॉटिंग्स हैं, ठीक है। हर प्लॉटिंग में आपको जो छोटे बड़े बिल्डर्स हैं वो लोग काम करते हुए मिलेंगे। त्रेहान है काम कर रहे हैं, BLF है आपका, ROF प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, ठीक है। और बहुत से छोटे मोटे मतलब बिल्डर्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो है प्राइजेस जो हैं वो थोड़े से अभी मतलब क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है या बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि सप्लाई जो है कांस्टेंट सप्लाई है अभी हमारे पास, ठीक है। फिर सिग्नेचर की टर्म्स वैभव जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है जी, और आपने काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्राइव करेगी कि जो एक प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब हो गया है, इस तरह की कोई फैमिलीज को आउटसाइड से रहने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका इम्पैक्ट मतलब जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज की हम बात कर रहे थे कि वो यहाँ पे लैंड देख रहे थे, इनफैक्ट मतलब उस इंसिडेंट के बाद ना वो थोड़ा सा एक टाइम के लिए मतलब मे बी मतलब मोटा मोटा मैं बात करूँ तो 6 महीने के लिए जो है वो रुक गया था, ठीक है। और ये चीज़ बहुत अलार्मिंग थी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर कंपनीज नहीं है, गुड़गांव के पास अपना कुछ नहीं है, गुड़गांव के पास बस उसका लोकेशन है, इट्स विसिनिटी टू द IGI एयरपोर्ट, राइट। एंड फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उसकी वजह से मिल गया, फिर सारे कंपनीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से गुड़गांव है आज। गुड़गांव हरियाणा के GDP का मेजर कंट्रीब्यूटर है। आप अगर एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज बहुत छोटा है गुड़गांव, बट मेजर कंट्रीब्यूटर
इन जीडीपी। तो मतलब गवर्नमेंट इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। इग्नोर तो आप मतलब भूल जाओ, कोई एक क्या कहते हैं, कोई स्कोप नहीं छोड़ सकती इसके इस पे, मतलब कोई नेगेटिव कुछ हो जाए यहाँ के लिए। तो उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल होम बायर्स बिल्कुल निश्चिंत ही रहें। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। सो वैभव जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली, कनेक्टिविटी की बात कर ली, जी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अफोर्डेबल हाउसिंग में? 2 BHK, 3 BHK, विलास, प्लॉट्स, इस बारे में थोड़ा सा बताएं, और उनका थोड़ा सा प्राइसिंग भी बताएं कि अफोर्डेबल सेक्टर में आदमी क्या ले सकता है वहाँ पर। सर देखिए, अफोर्डेबल जो है ना, अफोर्डेबल इज अ टेक्निकल टर्म इन हरियाणा रियल एस्टेट, राइट। सो मतलब अफोर्डेबल की अगर मैं बात करूँ तो सर, अफोर्डेबल जो हाउसिंग है दैट इज रेगुलेटेड बाय द अथॉरिटीज, द गवर्नमेंट अथॉरिटी। मैं वैभव जी नॉर्मल वाली पूछ रहा हूँ, विद फुल एमिनिटीज जो है, वो जो अभी अवेलेबिलिटी है। हाँ, तो अगर मैं मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब जो एवरेज प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो एवरेज प्राइसिंग जो है वो मतलब मैं पर स्क्वायर फीट बात नहीं करता, क्योंकि उससे जो है एक मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया अपने होम बायर्स को मैं नहीं दे पाऊँगा, राइट। तो मैं मतलब ऐसे बात करता हूँ कि जो रेंज है, मैं प्राइस रेंज पे बात करता हूँ, राइट। अगर आप 2 BHK 2.5 BHK के फ्लोर्स अगर आप कंसिडर करते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 1.15 के से शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब 1.15 CR मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक अच्छा 2.5 BHK आपको गुड़गांव में मिल जाता है, जो सेक्टर 95 के मतलब लोकेशन की मैं बात करूँ तो, ठीक है। और वहीं अगर मैं सोना की बात करूँ, तो सोना में जो दीनदयाल जन आवास योजना वाले जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मेजर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आपका 160 जो स्क्वायर यार्ड्स हैं उसके आसपास हो रहा है। 157 हो जाए, 59 हो जाए, 62 हो जाए, 61 हो जाए, ठीक है। तो उसमें जो है 2 BHK की साइज, मतलब 2 BHK की लेआउट कोई नहीं लेकर के आ रहा है, सारे 3 BHK के लेआउट से लेकर के आ रहे हैं। तो 3 BHK का जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं 1.5 1.6 से शुरू हो जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करूँ, सिग्नेचर ग्लोबल के भी पास कुछ छोटे प्लॉट्स थे जिन पे फ्लोर्स वो लेकर के आए, तो उनका जो 3 BHK छोटा वाला साइज था वो आपको अराउंड 170 के आसपास उनके पास भी था, राइट। तो मतलब एक फिर मैंने अभी सिल्वर ग्लेड के द मीलिया की मैंने बात करी थी, उसमें 2.5 BHK है, 1425 स्क्वायर फीट का। उसमें बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज अभी बचे हैं, तो वो आपको 1.6 के आसपास मिलता है, 1.6 ईयर के आसपास, ठीक है, जो कि आपको रेडी टू मूव इन कंडीशन में है। तो और द मीलिया में ही अगर मैं 1 BHK फ्लोर्स की बात करूं, जो कि अराउंड 700-800 स्क्वायर फीट के आसपास का उसका साइज होता है, राइट। और वो आपको अराउंड 90 lakhs के आसपास की प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो वो एक मतलब क्या कहते हैं, एंट्री लेवल आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो वहाँ से शुरू हो जाता है और फिर इसी सब के अराउंड जो है डायनेमिक्स चेंज होते हैं। ठीक है वैभव जी, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट्स डिलीवर करे, लोगों को उनकी ऑप्शंस के बारे में भी बताया जो सोना में सेक्टर 95 में ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी हमने डिस्कस किया, प्राइसिंग ट्रेंड्स भी डिस्कस किए, कनेक्टिविटी भी डिस्कस की। तो फ्रेंड्स, आपके काफ़ी FAQs जो पिछले कुछ समय में हमारे पास इकट्ठे हुए हैं वो हमने वैभव जी से पूछ लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं सोना में या सेक्टर 95 में, और गुड़गांव आपके लिए थोड़ा सा अनअफोर्डेबल हो रहा है, और आपको एक अच्छा घर चाहिए विद फुल एमिनिटीज इन गुड लोकेशन ऑफ प्राइम लोकेशन ऑफ
सोना रोड, एंड आई वुड से इट इज़ पार्ट ऑफ गुड़गांव ओनली, साउथ ऑफ गुड़गांव कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो नीचे वैभव जी का नंबर दिया है, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद हिम। ही विल ट्राई, उनकी टीम पूरा ट्राई करेगी कि आपको बेस्ट टू बेस्ट होम आपके बजट के अंदर मिल जाए। थैंक यू वैभव। थैंक यू आशीष जी।